to my YouTube channel Be Fashionative. I'm your friend Srishti. So this video gonna be a little bit informative video because I'm gonna share my experience of keratin treatment and smoothing treatment. मैंने दोनों ही treatment करवाया है, so I'm gonna share my experience with you guys because अगर आप में से कोई भी plan कर रहा है to get this treatment done, so watch this video till the end. So without wasting any more time, let me start with this video. So सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्मूथनिंग एंड केराटिन ट्रीटमेंट. सो बेसिकली स्मूथनिंग इज अ प्रोसेस वेयर योर हेयर इज chemically treated and after that flat iron is used to straighten up your hair. In smoothing your hair looks naturally straight, and what I meant by naturally straight, there is another treatment which is called rebonding. आप लोगों ने नाम सुना ही होगा rebonding का. In that treatment आपके बाल पूरे ही straight हो जाएंगे, like poker straight. So that I think doesn't look that natural. So some people love rebonding, so that is completely your choice. It's her choice. आप rebonding भी करवा सकते, but if you want your hair look naturally straight, then I think you should go with smoothing. And rebonding के लिए I'm not the right person to tell because I haven't got that treatment done, so I can't share my experience of rebonding. But coming back to the topic, if you are looking for natural smooth straight hair, then I think you should go with smoothing. So ये थी smoothing. So now let me tell you what is keratin. So now I'm gonna tell you what is keratin treatment. Well, keratin is a protein. So in this process, your hair is chemically treated to give your hair or scalp protein. But in keratin, don't expect कि आपके बालों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगी और बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी. नो, योर हेयर गोना लुक द सेम. वेवी है तो वेवी रहेंगे, अगर आपके बाल स्ट्रेट है तो स्ट्रेट रहेंगे. सो डोंट एक्सपेक्ट कि केराटिन में आपके बालों की क्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी. Okay. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेबिलिटी. कितने टाइम तक ये लास्ट करती है, कौन सी ट्रीटमेंट कब तक लास्ट करती है. So smoothing treatment lasts around I think 1 year to 1.5 year. It varies to person, depends on your hair texture or something like that. But minimum तो ये 1 year to 1.5 year तक तो last करती ही है. And obviously it depends in that thing also कि हम कितनी बार hair cutting करवा रहे हैं or something. Because if you remember in my touch-up video I have mentioned that मेरे जो smoothing वाले बाल थे मैंने उनको काट दिया था. One day I chopped my hair. Yes, मैंने अपने बाल ही काट डाले. तो काफ़ी मेरे जो स्मूथिंग वाले बाल थे उनको मैंने कटिंग में उड़ा दिया, तो काफ़ी जल्दी मेरे स्मूथिंग वाले बाल चले गए थे. सो दैट वाज माय फॉल्ट. स्मूथिंग कब तक आपके बालों में लास्ट करती है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स हाउ यू ट्रीट योर हेयर और आप हेयर कटिंग करवाते हो समथिंग. सो पर मिनिमम 1 year to 1.5 year तक तो ये लास्ट कर ही जाती है. बट इन केराटिन, now let me tell you durability of this keratin treatment. So keratin treatment will last for 4 to 6 months only, not more than that. And in my case it did not even last for 1 month. Yes, 1 month तक भी last नहीं करा मेरे keratin treatment. So I think durability बहुत कम है keratin treatment की. बस I think before proceeding with any treatment we should know pros and cons. So I'm gonna share all the pros and cons that I know. So let's talk about smoothing first. So let me tell you about the pros of the smoothing first. So the first pro I think according to me is by smoothing your hair looks sleek and straight. My hair never looked that straight in my entire life. जब मैंने smoothing करवाई मेरे hair काफ़ी sleek and straight हो गए थे and I was in love with my hair. मेरे हेयर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई थी आफ्टर स्मूथनिंग. एंड बाय स्मूथनिंग योर हेयर लुक सिल्की एंड शाइनी. वेल ट्रस्ट मी, मेरे बाल कभी जितने ज़्यादा स्मूथनिंग के टाइम पे सिल्की एंड शाइनी थे इतने तो कभी नहीं थे यार. मेरे बालों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई थी. नेक्स्ट प्रो अकॉर्डिंग टू मी इज नो हीट अप्लायंस वुड बी नीडेड बिकॉज आपके बाल वैसे भी ऑलरेडी स्ट्रेट है. मतलब मैंने जब स्मूथनिंग करवाई थी उसके बाद तो मैंने काफ़ी टाइम तक तो स्ट्रेट करा ही नहीं था अपने बालों को. सो येस, मुझे हीट अप्लायंस यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी. एंड लास्ट प्रो इज टाइम स्पैन. like time span in my case was not that good because मेरे बालों की स्मूथनिंग का असर 1 year कंप्लीट होने से पहले ही जाने लगा था, बट वो इसलिए भी क्योंकि मैंने कई बार अपने बालों को छोटा करवाया है एंड दैट वॉज माई फॉल्ट. बट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू ट्रीट योर हेयर एंड आप कितनी बार हेयर कट लेते हो, सो टाइम स्पेन इस पे भी वेरी करता है. लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स.
बिकॉज हर ट्रीटमेंट के प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, तो वी शुड नो अबाउट द कॉन्स ऑल्सो. फर्स्ट कॉन अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इज द प्राइस. सो स्मूथनिंग में मुझे लगता है कि प्राइस इज one of the con because some people doesn't want to spend that much money to make your hair that shiny or something, but obviously these treatment are very expensive. Next con according to me, oh god, it was a nightmare for me. Yes, I'm talking about hair fall. After smoothing मेरे hair fall काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. I don't know it was only me और कई लोगों का ऐसा होता है, but मेरे hair fall तो बहुत ही ज़्यादा हो गया. After smoothing first week तो मेरे बालों में कोई भी ना hair fall नहीं हुआ, but after 1 week काफ़ी मेरे बालों का काफ़ी hair fall शुरू हो गया था. And जिस salon से मैंने करवाया था, that person suggested me to use L'Oreal Extenso shampoo. I think that is the worst shampoo I've ever used. बकवास है वो shampoo. Just telling you guys, अगर आप में से कोई भी अगर वो shampoo use करता है तो just let me know कि आपको वो shampoo अच्छा लगता है कि only is it me. Because when I stop using that shampoo मेरे hair fall तब कम हुआ. तो I don't know ये smoothing की वजह से मेरा hair fall इतना बढ़ गया था कि that shampoo was disaster. Eventually अगर आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लेते हो तो आपके हेयर फॉल तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो होगा और आपके बाल डैमेज होंगे. तो आपको अपने बालों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना होगा. एंड नेक्स्ट कॉन अकॉर्डिंग टू मी इज आई थिंक स्मूथनिंग कुड मेक योर हेयर ड्राई एंड फ्रिजी. क्योंकि स्मूथनिंग के कुछ जब उसका लाइफ स्पैन खत्म होने लगता है, जैसे जैसे स्मूथनिंग जाने लगती है, योर हेयर टेंड टू लुक फ्रिजी एंड डैमेज एंड ड्राई. मेरे बालों में तो काफ़ी ड्राइनेस हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हो गए थे. दैट्स आई हैव टू गॉट दैट ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट डन. बट केराटिन से भी कुछ खास तो हुआ नहीं. मेरे बाल तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए थे. तो ये भी आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि आफ्टर स्मूथनिंग यू आर गोना लुक सिल्की एंड शाइनी फॉर होल लाइफ. नो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट केराटिन. नाउ लेट मी टेल यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ केराटिन. सो द फर्स्ट प्रोज अकॉर्डिंग केराटिन प्रोवाइड्स प्रोटीन टू योर हेयर. वेल हम इतनी ज़्यादा हीट अप्लायंस यूज़ करते हैं अपने बालों में एंड इतनी सारी ट्रीटमेंट हम अपने बालों में करवाते हैं, सो हमारे बालों से प्रोटीन काफ़ी चला जाता है. सो व्हाट आई थिंक केराटिन में सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपके बालों में प्रोटीन आता है. सो दिस इज द फर्स्ट and I think only pro I know. Now let me tell you cons. Well, according to me, first con is short lifespan. Keratin treatment will last for only 4 to 6 months, and as I mentioned before, in my case it did not even last for 1 month. So I think short lifespan is a big con of केराटिन ट्रीटमेंट. एंड उसी से मेरा सेकंड कॉन भी है रिलेटेड इज प्राइस. लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग इसका कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा है. सो आई थिंक केराटिन ट्रीटमेंट का सेकंड कॉन है प्राइस, क्योंकि ये इतने लंबे टाइम तक टिकता भी. सो दिस ट्रीटमेंट विल नॉट लास्ट फॉर लाइक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड और उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी इसका ज़्यादा है. तो और आपके बालों की क्वालिटी कुछ ज़्यादा चेंज भी नहीं होती है. सो अकॉर्डिंग टू मी प्राइस उस हिसाब से आई थिंक ज़्यादा है. सो दैट वॉज another con according to me. Now let me tell you the process of smoothing and keratin. So this whole procedure of smoothing start with the shampoo. So सैलून में सबसे पहले वो आपके बाल शैम्पू करते हैं टू मेक श्योर कि आपके बालों में कोई भी डर्ट, कोई भी ऑयल और समथिंग कुछ भी नहीं है. वो पूरा आपके बालों को अच्छे से क्लीन करते हैं. सो इन स्मूथनिंग फर्स्ट दे यूज दिस हेयर क्रीम विच इज extra resistant hair cream. So in my case they used L'Oreal के products. So first they used this hair cream which is called extra resistant hair cream. So पहले उन्होंने मेरे बालों में वो क्रीम लगाई and I had to wait for 45 to 1 hour, क्योंकि फिर उससे आपके बालों में वो क्रीम अच्छे से लग जाती है. सो आपको उस क्रीम को लगा के कुछ देर तक वेट करना होता है. आफ्टर 45 to 1 hour दे कम एंड चेक योर हेयर स्ट्रैंड्स टू चेक कि आपके बाल स्ट्रेट हो रहे हैं कि नहीं. सो दे मेक श्योर कि अच्छे से आपके बालों में वो क्रीम लग गई हो. सो आफ्टर दैट दे वॉश योर हेयर विदाउट शैम्पू. शैम्पू के बिना वो आपके बाल को वॉश करते हैं एंड देन दे स्टार्ट स्ट्रेटनिंग योर हेयर विथ स्ट्रेटनर. एंड अच्छे से आपके बाल को स्ट्रेट करने के बाद दे यूज सेकेंड क्रीम विच इज न्यूट्रलाइजर. एंड जब वो न्यूट्रलाइजर अच्छे से आपके बालों में लग जाता है और थोड़ी देर आप जब वेट कर लेते हो तो वो उसे भी विदाउट शैम्पू वॉश कर देते हैं. एंड देन आफ्टर 2 days यू हैव टू गो दैट सैलून. आफ्टर 2 days 2 दिन के बाद आपको वो सैलून जाना होता है शैम्पू कराने के लिए. प्रिकॉशन ड्यूरिंग दोज डेज. सो वाइल दीज 2 days दे विल टेल यू नॉट टू वॉश योर हेयर. पानी नहीं जाना चाहिए आपके बालों में. आप अपने बालों को कान के पीछे ऐसे भी नहीं कर सकते हो.
और can't tie your hair or make ponytail or something, no clutch, nothing, even you have to sleep like this कि आपके बाल मुड़े नहीं, आपके बालों में कोई डर्ट नहीं जानी चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, एंड सनलाइट से भी बचा के रखना पड़ता है फॉर 2 days। एंड आफ्टर 2 days जब वो आपके बाल शैम्पू कर देते हैं, देन यू आर फ्री एज अ बर्ड, यू कैन जस्ट प्ले विद योर हेयर। एंड आफ्टर दैट 2 days आई वॉज इन लव विद माई हेयर। मेरे बालों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो गई थी। नाउ लेट मी टेल यू द प्रोसेस ऑफ केराटिन। सो लेट मी टेल यू द प्रोसेस ऑफ केराटिन ट्रीटमेंट। सो दिस होल प्रोसेस ऑफ केराटिन ट्रीटमेंट विल टेक 2 hours, एटलीस्ट मेरी में तो 2 hours में ये ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया था। सो अगेन इन केराटिन ट्रीटमेंट दे विल स्टार्ट शैम्पू। तो सबसे पहले वो आपके बाल को शैम्पू करते हैं टू मेक श्योर कि आपके बालों में कोई भी डर्ट, कोई भी ऑयल, कुछ भी नहीं है, ताकि वो जो भी केमिकल आपके बालों में लगाते हैं वो अच्छे से लग जाए। नो सो आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर दे विल केराटिन क्रीम ऑन योर हेयर, और अच्छे से सेक्शन लेके वो आपके बालों में केराटिन क्रीम लगाते हैं टू मेक श्योर कि आपके कोई भी हेयर स्ट्रैंड मिस ना हो। एंड आफ्टर दैट आपको केराटिन ट्रीटमेंट में हाफ एन आवर तक वेट करना होता है। एटलीस्ट मुझे तो हाफ एन आवर तक उन्होंने वेट करने के लिए बोला था। एंड आफ्टर दैट दे ब्लो ड्राइड माई हेयर एंड उन्होंने उसके बाद मेरे बाल को स्ट्रेट कर दिया था। In keratin they will call you after 2 days or 1 day or 2 days, but in my case they called me next day। so मुझे जिस दिन मैंने केराटिन करवाया था उसके नेक्स्ट डे ही जाना था। so precaution while these 2 days, all you need to do is कि आपके बालों में पानी ना जाए। rest you can do anything, like अपने बालों का अच्छे से ईयर्स के पीछे ले जा सकते हो, और you can make ponytail or समथिंग। पर हाँ, एक दिन के लिए आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ऑयली एंड कूल लगते हैं, बट आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर आपके बाल काफ़ी बेटर हो जाते हैं। एटलीस्ट 1 week तक तो हो ही जाते हैं। लाइक मेरे बाल तो 1 week तक ही रहे। So now I'm gonna tell my experience of these treatments because मैंने दोनों ही ट्रीटमेंट करवाए हैं। So I'm gonna share my experience. Maybe this will help you guys. Maybe in case if you are planning to get this treatment done. So in smoothing, सबसे पहले मैंने smoothing करवाई थी। तो after smoothing I was in love with my hair। मेरे बाल because my hair was never that silky and straight। क्वालिटी काफ़ी मुझे बेटर लगने लगी थी अपने स्मूथनिंग वाले बालों की, और उनको हैंडल करना भी काफ़ी ईजी हो चुका था। एंड yes, I was completely in love with my hair, but every love story comes with a tragic story। yes, मेरे बालों का प्यार ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिका। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come. Shut up. Because after couple of months मेरे बालों की स्मूथिंग जैसे जैसे कम होती गई, मेरे बाल काफ़ी डैमेज एंड ड्राई हो गए थे। एंड दैट इज़ वाई आई हैड टू गेट दिस ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट डन। एंड आफ्टर स्मूथिंग मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया था। एंड अगेन आई एम सेइंग आई डोंट नो कि आफ्टर स्मूथिंग और मे बी आई वॉज यूजिंग दैट शैम्पू जो मुझे सलून में उन्होंने सजेस्ट किया था, दैट एक्सटेंसो शैम्पू। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस शैम्पू बिकॉज ये आपके बालों को स्मूथ तो करता है बट इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सो आई विल तो सजेस्ट यू गाइज टू नॉट टू यूज़ दिस शैम्पू। मे बी अगर यूज़ करना भी है तो पहले मेक श्योर कि दिस शैम्पू सूट्स यू, otherwise just don't use this shampoo। so I think for me damaged hair and dry hair and hair fall was biggest nightmare for me because I was not able to handle my hair, so I had to do something and I got keratin treatment done। so my experience of keratin treatment it's not that good because as I mentioned काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे बालों में ये keratin treatment का मुझे भी कोई भी असर नहीं दिखा एंड मेरे बालों की क्वालिटी भी कुछ खास चेंज तो नहीं हुई। so if you are planning to get this treatment keratin treatment done, so don't expect a lot from keratin। it's just a protein जो आपके बालों में ज़रूरी है क्योंकि हम इतने हीट अप्लायंस यूज़ करते हैं एंड वी गेट दिस सो मैनी ट्रीटमेंट डन ऑन आवर हेयर। सो हमारे बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। सो वी नीड सम सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑन आवर हेयर, और आई थिंक वो डाइट से वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो वी नीड टू गेट केराटिन ट्रीटमेंट। सो इन माई केस स्मूथनिंग के बाद मेरे बालों का टेक्सचर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे बालों में स्मूथनिंग थी और जब तक थी इट वॉज मैजिकल। आई जस्ट लव माई हेयर बट in keratin I cannot see any difference। like 3 weeks हो चुके हैं मुझे after this keratin treatment and you can see there's no difference in my hair, right? I think मेरे बालों में प्रोटीन की जो कमी थी वो मिल गई है। so that's all I had to share with you guys।
that was my whole experience of keratin and smoothing. And let me know if this video helped you guys, because I just shared my experience, and I'm not saying I'm a professional, I've just shared my experience. But after getting these two treatment मुझे smoothing and keratin के फंडे सारे clear हो चुके हैं. So I thought I should tell you guys, right? So if you're planning to get any of this treatment, so I think I have covered every points that I had. I think smoothing से हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा smooth and manageable हो जाते हैं. So personally तो मुझे smoothing से काफ़ी ज़्यादा अच्छा experience रहा है starting में. After जब मेरी स्मूथनिंग चली गई तब मेरे बालों की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हुई, बट केराटिन से तो आई कांट सी एनी डिफरेंस. सो लेट मी नो कमेंट्स में आप लोग भी मुझे बताना कि क्या आप लोग को भी केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद कोई डिफरेंस नहीं लगा, और इज इट ओनली मी. और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है या किसी भी तरह से ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल थी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सो आई एम गोना गो एंड मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू. बी पैशनेट.